ओके 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 ओके, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कुछ पढ़ा था, जी बता दें। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ओह गुड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? We do represent by a real number and a unit. Oh my god, yes, this is a correct answer. So we always remember physical quantity by a real number and a unit. So what is a unit? Unit is the set of standards specified by the physicist. Oh my god, that is a correct answer. Yes, unit is the set of standard which is specified by the physicist. We always do compare our physical quantities, our physical measurements with the unit, okay, with the standard which is specified by the scientist. Today we are discussing about the types of physical quantities, that what are the different types of physical quantities and how do we distinguish them, how do we find out these quantities. So okay, we are discussing about the types of physical quantity. So number one is fundamental physical quantity. Okay, so number one is fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity, as the name represents, it is the fundamental. When something is fundamental, we cannot explain it with the help of other things, just like physical quantities. Okay, I'm taking an example of a little example, a wonderful example, that suppose that we have alphabets, English alphabets, A, B, C, D, and so on. They are the English alphabets. So they are the base. They are the base quantities. Take them as a base quantities. And whenever we are combining these alphabets and they give us a meaningful unit, so this meaningful unit is known as word. Okay. So word is the meaningful unit. Word is the meaningful unit. So word is a meaningful unit. So word is derived from this one. So this is our derived one. Okay, the word is derived from the alphabets. Simply I can say, because these alphabets are combined to form this word. Okay, so we can say that the word is derived from these alphabets. So just like that, we have to distinguish two different physical quantities. Number one is fundamental physical quantities. Other one is derived physical quantity. If I can explain this fundamental physical quantity, it's a king of itself. Okay, it is a king of itself. We cannot define it with the other physical quantity. We cannot define with the other physical quantities. Okay, so if we can write the definition of fundamental physical quantity, so any quantity, any physical quantity which cannot be, any physical quantity which cannot be explained by, which cannot be explained by other physical quantities. It means कि ये जो क्वांटिटीज होती हैं वो अपनी बादशाह खुद होती हैं. इनको बताने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती. ये खुद से अपने आप को डिफाइन कर रही होती है. यानी दे आर द बेस. अगर मैं आपसे पूछूं इस एपीसीटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप नहीं बता सकते. लेकिन वर्ड जो मैंने लिखा है, कोई भी वर्ड ये बनाया है, तो आप बता सकते हैं. WORD मिलकर इसको बना रहे हैं. तो ये चीज होती है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन नॉट डिफाइन देम, वी कैन नॉट एक्सप्लेन देम विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज. सही है. तो उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या उसे बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है. सही है.
तो कितनी है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? दे आर द 7 इन नंबर। सही है, वो 7 है नंबर में। अब मैंने इसे डिफाइन नहीं किया या आपने नहीं किया, बल्कि जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने पहले आपको डिफाइन किया कि सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं फॉर द यूनिफॉर्मिटी, दुनिया को यूनिफॉर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, एक सिस्टम सा बना देते हैं। सही है, तो हमारे पास ये जो सिस्टम है, ये जो बना हुआ है सिस्टम, जिसे हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज दी, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स दिए, तो उस सिस्टम को कहा जाता है एसआई। क्या कहते हैं? एसआई। एसआई इज द एब्रिविएशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल, ओके। सो एसआई इंटरनेशनल, check out the spelling because I'm not the I'm not the grammarian, I'm only physicist, okay। system international, ठीक है। तो ऐसा यूनिट, ऐसा है जो सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल, उसने क्या किया है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर दिया है। हर किसी के यूनिट्स डिफाइन करना, उन बेस कौन सी क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड कौन सी हैं, वो चीज़ यही बताता है एसआई। तो एसआई यानी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे फिजिसिस्ट आए, सब बैठे एक पेज पर और उन्होंने कुछ चीज़ों को डिफाइन किया जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं। सही है, तो उनको ही हम फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, उसके दो टाइप बताएं। एक है आपके पास फंडामेंटल और दूसरी क्या है, डिराइव्ड। सही है, पहले फंडामेंटल को समझें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज दे आर द 7 इन नंबर, यानी हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं उन्हें डिफाइन करने के लिए, वो खुद को डिफाइन कर रही थी। दे आर द बेस। जैसे मैंने वहां बता दिया आपको कि जैसे हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं वैसे ही आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। यहाँ आपके पास 7 है, 1, पहले ये 2 आपके पास आ गया, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। जहां कहीं भी बैठे हैं मेरे साथ रिपीट करते जाएं। सबसे पहले आपके पास लेंथ, क्या है, लेंथ। लेंथ क्या है, लेंथ। दूसरा क्या है आपके पास, मास, मास, मास। तीसरा क्या है आपके पास, टाइम, क्या है, टाइम, टाइम। आपके पास टाइम है, होगा शायद, बहुत ज्यादा टाइम होगा अभी आपके पास, बिकॉज आप अभी क्लास 9th में है तो बहुत टाइम है अभी आपके पास, टाइम। उसके बाद है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, जी हाँ, वही जो डॉक्टर साहब का मेजर करते हैं थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हुए कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, जिसे हम कहते हैं। देन टेम्परेचर के बाद है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है कि जब भी हम चीज़ों को मेजर करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा यूनिट है जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ जो बनी हुई है उसके अंदर वो जो सब्सटेंस है, मसलन ये प्लास्टिक का बना हुआ है ना, प्लास्टिक कितना है, उसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। तो उसे भी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेकर चलते हैं। मैं नहीं, ऐसा सिस्टम लेकर चलता है। देन आपके पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दूसरा क्या है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की जो शिद्दत है, लाइट कितनी आ रही है। मसलन यहाँ लगा हुआ है ना बल्ब, बल्ब में से जो लाइट आ रही है वो मेरे पास कितनी आ रही है, ये चीज बताती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, कि लाइट की जो शिद्दत है वो कितनी है, वो चीज ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। देन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको पता है ना, नहीं पता तो हाथ लगाकर चेक कर लीजिएगा। आप क्या करें, बोर्ड जो है आपके पास, वो जो बोर्ड है, बोर्ड बिजली का, उसमें अपनी उंगली अंदर उसमें दबा लें, सही है, या फिर उसे अंदर वायर डाल के उसमें ऐसे मुंह में रख दें, सही है, तो पता चल जाएगा वो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है। बताए, ऐसा ऐसा करते रहें, खुदा का खौफ करें, मेरा नाम मत लीजिएगा, अगर करना है तो करें, ओके। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ना हो कि कल को आप रसीद लेकर जाएंगे, सर अबू हुज़ैफा से आपने सीखा था। तो इलेक्ट्रिक करंट वही होता है जिसके जरिए हमारी ये जो पंखे वगैरह है वो चल रहे होते हैं, सही है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहीं से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट। अब इन सब का ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, दे आर द बेस क्वांटिटीज, रट लो। दूसरी जितनी भी क्वांटिटीज होगी वो इनमें से ही बन रही होंगी। कोई 2 क्वांटिटीज या तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी, 2 क्वांटिटीज या आपस में डिवाइड हो रही होगी, तो एक न्यू क्वांटिटी हमें मिल रही होगी, सही है। सिंपली यही है आपके पास रूल।
कि दो फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए। अब ये जो लेंथ है, ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं। सही, वो यूनिट्स भी आप याद कर लें, बिकॉज आगे जाकर यही आपकी हेल्प कर रहे होंगे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सही, लेंथ जो है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में। किसमें? मीटर्स में। सुना होगा आपने मीटर्स। और इस मीटर को इतना बड़ा लिखने के लिए बजाय हम एक छोटी सी सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम विद द एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, छोटी एम। सही, मीटर यानी 5 मीटर, 10 मीटर। 10 एम लिखा गया है इसका मतलब 10 मीटर, 5 एम लिखा गया है इसका मतलब 5 मीटर। 10 मास को हम किलोग्राम से मेजर करते हैं, किलोग्राम। पता है ना कितना केजी आपका मास है? मेरा मास 10 केजी है, 15 केजी है, 20 वही केजी है। इसको हम केजी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वही किलोग्राम। देन टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम का जो एसआई यूनिट है, ये यूनिट्स हैं आपके पास। सही है, अगर मैं यहाँ लिखूँ ये जो क्वांटिटी है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके यूनिट्स ये हैं। ये सेकंड, सेकंड को एस के साथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं या SEC के साथ भी, ऐसे सेकंड भी लिखते हैं। सही है। देन है आपके पास टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है SI यूनिट, SI यूनिट इज केल्विन। देन इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द के, केल्विन। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, इसको हम लिखते हैं MOL। बजाय कितना बड़ा लिखने की हम छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही छोटा नहीं कर दिया इसने। ओके, देन ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, इसका यूनिट है कैंडेला। क्या है? कैंडेला, कैंडेला, इसे CD के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पियर, एम्पियर। सही है, इसको हम A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये उनके यूनिट्स हैं आपके पास। और ये है उन यूनिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द एम, केजी, सेकंड, किलो, CD एंड एम्पियर। सही है, तो ये है आपके पास वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी? वो इन क्वांटिटीज में से बन रही होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ABC आर द बेस क्वांटिटीज, और ABC मिलकर एक वर्ड जब बनाती हैं, वर्ड, वो वर्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। सही है, वर्ड कैसे बना? ABC में से W को उठाया, ABC में से O को उठाया, ABC में से R को उठाया, सारी ABC में से D को उठाया, तब जाकर एक वर्ड हमें मिला, एक मीनिंगफुल यूनिट मिला। तो ये मीनिंगफुल यूनिट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। सही, तो अगर ये जो मैंने आपको एग्जांपल लिया इन अलग ही बताई आपको, इसको मैं अप्लाई करना चाहूँ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में, तो derived physical quantities are those physical quantities which are explained by other fundamental physical quantities by the help of fundamental physical quantities। सही है, दूसरी हमारे पास टाइप आ गया derived physical quantity, derived physical quantity। अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं कि those physical quantities which are explained with the help of fundamental physical quantities। सही है, those physical quantities, those physical quantities which are explained, which are explained on the basis of, explained by fundamental physical quantity, which are explained by fundamental physical quantity। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, इसे हम कहेंगे डेराइव्ड। यानी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपस में मिलकर कोई ना कोई डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाएंगे। अब ये जो डेराइव्ड बनती है फ्रॉम द फंडामेंटल, वो कैसे बनती है? उसके लिए 2 रूल्स हैं आपके पास। पहला है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होगा? 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो तब जाकर हमें क्या मिलेगा? एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा है आपके पास डिवीजन रूल। सही है, डिवीजन रूल। इसमें क्या होगा? 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होंगी, उसके बाद आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रही होगी जिसे आप क्या कहेंगे? फंडामेंटल, जिसे आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। समझ लें कि अगर आपके पास है एक छोटी सी क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं मोमेंटम, P = mv। सही है,
P इज इक्वल टू एम वी, एक हमारे पास क्वांटिटी है उसे कहते हैं मोमेंटम। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो m है इज द फॉर द मास, तो ये आपके पास आ गई मास, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी, इज मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। तो हमें क्या मिला, यानी दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया, मुझे एक न्यू क्वांटिटी मिली मोमेंटम, जो कि एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ कुछ गलत लिखा है, कुछ नजर आ रहा है कि आपने कहा कि दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, मुझे एक डिराइव्ड मिली। सर ये फंडामेंटल है, सर ये फंडामेंटल तो हमने नहीं देखी, बिकॉज 7 क्वांटिटीज थी उसमें वेलोसिटी तो नहीं थी, तो वेलोसिटी खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है, सही है। तो वो कैसे आई है, डिवीजन रूल से। जो वेलोसिटी है आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू द, वेलोसिटी जो है या स्पीड या वेलोसिटी दोनों की आपके पास जो डेफिनेशन होगी ऑलमोस्ट सेम आएगी। आगे जाकर आप इन्हें डिस्टिंग्विश करेंगे, लेकिन यहाँ वो सेम ही। स्पीड या वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम। क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। यानी दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने डिवाइड किया, मुझे क्या मिली, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सही है। यानी जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये वेलोसिटी, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है, लेंथ की जरूरत पड़ रही है, और दूसरा क्या है, टाइम की जरूरत पड़ रही है। यानी दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है इसको डिफाइन करने के लिए। मैं इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही डिफाइन करूंगा कि वेलोसिटी इज द डिवीजन रेशियो ऑफ लेंथ टू द टाइम, सही है। लेंथ का टाइम के ऊपर जो रेशियो है वो कहलाता है वेलोसिटी, सही है। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मुझे लेंथ की जरूरत पड़ी जो कि एक फंडामेंटल है, टाइम की जरूरत पड़ी जो कि एक फंडामेंटल है, दोनों डिवाइड हुए तो हमें क्या मिली, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ हमारे पास क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय द लेंथ अपॉन टाइम, इनके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया मास को, तो मुझे एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मिली जो कि कहलाएगी मोमेंटम, सही है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो डिराइव्ड होती है कैसे बनती है, या तो मल्टीप्लीकेशन से बनेगी या फिर डिवीजन से बनेगी। कुछ एग्जांपल ले लें आप, आपके पास सिर्फ वेलोसिटी आपने लिख लिया, या मोमेंटम जो है, मोमेंटम की स्पेलिंग चेक कर लें। मोमेंटम है आपके पास, वेलोसिटी हो गई आपके पास, एक्सेलरेशन हो गई। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, देखें, एक्सेलरेशन आपने सुना होगा, एक्सेलरेट करना, गाड़ी को एक्सेलरेट करें, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी को चेंज करना। ये चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सही है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसे भी मैं फंडामेंटल के तौर पर डिफाइन कर सकता हूँ, लेंथ अपॉन टाइम, टाइम यानी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो आप बता सकते हैं यानी एक्सेलरेशन को बाय द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देन फोर्स है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्या, एम ए, एम फॉर द मास, ये एक्सेलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, फोर्स मिला। अगर मैं आपसे कहूँ टार्क, टार्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी, TORQUE, टार्क, सही है। इसे टा के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू F इंटू डी, सही है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डी, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ ही होती है आपके पास, दो आपस में मल्टीप्लाई हुए, आपको एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिली, सही। तो आपके पास जो फंडा में बहुत सारी हैं, फंडा ऑल अदर 7 जो हमने लिखी थी फंडामेंटल को छोड़कर, जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज आपको मिले वो क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ही कहलाएंगी, सही। तो दीज आर 7 आर, ये जो 7 थी वो क्या थी आपके पास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्या थी, इन 7 में से ही बनी, कैसे बनी, या तो मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके, सही है। या तो आप मल्टीप्लाई रूल करेंगे या फिर दोनों को डिवाइड कर रहे होंगे, तो उससे जो क्वांटिटी आपको मिल रही होगी वो क्या कहलाएगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल को कभी भी हम अदर क्वांटिटीज के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन डिराइव्ड कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी को किया, फोर्स को किया, एक्सेलरेशन किया, सबको आप कर सकते हैं कि आपके पास लेंथ, मास, टाइम, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके आपको न्यू क्वांटिटी दे रही होगी, ठीक है। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट आपके पास कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।